Hello students, today's topic is theory of superposition. As we have learned earlier the theory of superposition, and now today we are going through the principle of superposition. So what is the principle of superposition? So to know this, let us consider, we are considering the two waves represented by y1 equals to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus delta. Okay, so these two waves have the same frequency, that is omega. Y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus delta. So frequency is same, that is omega, and displacement are along the same lines. Displacement, that is the, if this is the axis and the displacement of one wave is like this, then the displacement of the other wave will also be along the same line, that is along this line. Okay, so these are the two waves. So according to Young's principle of superposition, यंग्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर दो वेव्स हैं जिनकी की डिस्प्लेसमेंट्स y1 और y2 हो, तो रिजल्टेंट वेव की जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. सिंपल इसका क्या है, सम है. ओके, so y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus delta. Delta is the phase difference between the first wave and second wave. So a1 sin omega t plus, इसको आप ब्रैकेट को खोल देंगे, सो a2 sin a प्लस बी का फॉर्मूले से खोल देंगे, sin a cos b प्लस cos a sin b. तो sin omega t इंटू cos डेल्टा प्लस cos omega t इंटू sin डेल्टा, दिस. सो a1, इसको एक साथ ले लेंगे हम, a1 sin omega t प्लस a2 sin omega t इंटू cos डेल्टा. So this term can be taken into one bracket, a1 sin omega t plus a2 sin omega t into cos delta. So a1 plus a2 cos delta एंड बाहर ले लिया इसके sin omega t. ठीक है, sin omega t कॉमन. सो दिस सेकेंड टर्म इज a2 sin delta into cos omega t. So this is equation first. Now let a1 plus a2 cos delta, this term a1 plus a2 cos delta, this is a cos phi. इसको हमने मान लिया कि a cos phi, कैपिटल A cos phi मान लिया. ओके, और a2 sin डेल्टा को मान लिया हमने कैपिटल A sin phi. ठीक, सो दिस a and phi, this capital A and phi are the new constants. ठीक, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन नाउ. कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन फर्स्ट को अब हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा की जगह पे रख दिया a cos phi. सो दिस a cos phi इंटू साइन ओमेगा टी एंड प्लस दिस a2 साइन डेल्टा की जगह पे रख देंगे a साइन फाई, a साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी. ओके, सो y इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई. इस a कॉमन लेकर के यहाँ ये हो जाएगा वही साइन a प्लस b का फॉर्मूला, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई. So this equation will give the equation of the resultant wave, equation for the displacement of the resultant wave. So y is equal to a sin omega t plus phi. Okay, this is the equation of resultant wave and it is giving the displacement of the resultant wave. So where y is the displacement, a is the resultant amplitude. जो रिजल्टेंट जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, कैपिटल ए, एंड फाई इज द फेज डिफरेंस. सो वी कैन सी दैट सिमिलर, दिस इज सिमिलर टू द ओरिजिनल इक्वेशन.
दिस इक्वेशन 4, ये इक्वेशन हमने 4 मान ली, ठीक है। सो दिस इक्वेशन 4 इज सिमिलर टू दी ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी थी? जो दो वेव्स मानी थी अलग अलग, y1 एंड y2। y1 इक्वल्स टू a1 sin omega t and y2 इक्वल्स टू a2 sin omega t plus delta. So this resultant wave equation of resultant wave is similar to the original equation but with different amplitude. अब यहाँ पर देखेंगे हम कि एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, ओके, एंड विद डिफरेंट एंड न्यू फेज फाई। सो जो रिजल्टेंट वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, कैपिटल ए, एंड फाई इज द फेज कांस्टेंट, ओके। सो जो कि ओरिजिनल वेव्स के एम्पलीट्यूड से डिफरेंट है। Hence, sum of two simple harmonic motion of same frequency and along same line is also a simple harmonic motion of the same frequency. इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन लें हम तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वेशन भी हमें क्या मिलेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिलेगी विथ सेम फ्रीक्वेंसी। वी कैन सी दैट हियर the frequency is omega and in original equations the frequency was also omega. Okay, now squaring and adding equation 2 and 3. Now square and add, so we will get a square cos square phi plus a square sin square phi is equal to square of this plus square of this. So a square from right side, a square cos square phi plus a square sin square phi. So a square कॉमन आ जाएगा, cos square phi plus sin square phi is 1. So a square is equal to यहाँ a1 plus a2 cos ओमेगा का होल स्क्वायर, cos डेल्टा का सॉरी, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा और a2 स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा. So this will give a square is equal to a1 square plus a2 square plus this a2 square and ये a2 square यहाँ कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा, a2 स्क्वायर कॉमन लेकर के cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा. तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आ गया a2 स्क्वायर और तीसरा जो टर्म है ये क्या है, 2a1 a2 cos डेल्टा. सो दिस गिव्स द इक्वेशन 5. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2. So equation 3, a2 sin delta divide by a1 plus a2 cos delta is equal to a sin phi upon a cos phi. ठीक है, राइट साइड वाला भी डिवाइड हो गया तो दिस विल गिव tan phi. So this is equation 6. So now the constants a and phi can be evaluated using the इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 5. ठीक है, इक्वेशन 6 से tan phi यानी कि phi की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इक्वेशन 5 से a स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द कंडीशन फॉर मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंजेस, इफ यहाँ से हम कंडीशंस निकाल सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस की, जो इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं उनकी कंडीशंस निकाल सकते हैं. तो इफ cos डेल्टा इज इक्वल टू +1, cos डेल्टा इज इक्वल टू +1, देन फ्रॉम इक्वेशन 5, अच्छा cos डेल्टा जो है वो +1 कब हो सकता है, जब डेल्टा, अगर हम जो एंगल है उसको क्या ले लें 2n पाई, क्योंकि cos की जितनी भी 2n पाई वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए उसकी वैल्यू 2n पाई के लिए cos की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, +1 होंगी. ठीक है, 2n पाई वैल्यूज़ के लिए cos डेल्टा की वैल्यू क्या होंगी, +1. ठीक, सो n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन. सो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है. ठीक है, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पुट कर लेंगे हम इक्वेशन 5 में cos डेल्टा इज इक्वल टू +1, तो ए स्क्वायर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 एंड दैट इज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर. एंड इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये आप 11th-12th क्लास में पढ़ चुके हो. तो इंटेंसिटी आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से
ये ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर. So therefore for delta is equal to 2n pi is equal to 0, 2 pi, 4 pi, इन वैल्यूज के लिए हमें क्या मिलेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस. ठीक है. सो डेल्टा थीटा यानी सॉरी डेल्टा जो एंगल है कॉस डेल्टा में जो एंगल है उसके 0, 2 पाई, 4 पाई इन वैल्यूज के लिए हमें क्या मिलेगा, इन फेजेस के लिए हमें जो पैटर्न जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ब्राइट फ्रिंजेस. ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस. और इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस के टर्म में देखेंगे हम तो पाथ डिफरेंस के टर्म में डेल्टा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस. सो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई, फेज डिफरेंस इज 2n पाई. ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई. सो ये फेज डिफरेंस है, सो दिस इज 2n पाई. सो यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसल्ड आउट, सो n लैम्डा. So delta is equal to path difference should be n lambda. That is lambda, 2 lambda, 3 lambda, etc. So path difference कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए. और डेल्टा कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए. किसके लिए, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए. ठीक है. ना कंडीशन फॉर मिनिमा और डार्क फ्रिंजेस. अब डार्क फ्रिंजेस के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि अगर हम कॉस डेल्टा क्या ले लें, -1 ले लें, तो कॉस डेल्टा की -1 वैल्यू के लिए कॉस डेल्टा इज इक्वल टू -1 ले लें, तो -1 कब होगा, जब डेल्टा की वैल्यूज क्या होंगी, 2n - 1 इंटू पाई. ठीक. सो पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये वैल्यूज पे हमें क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंजेस. यहाँ ब्राइट फ्रिंजेस मिले थे हमें किस पे, 0, 2 पाई, 4 पाई पे. इन वैल्यूज पे हमें क्या मिलेंगे, दिस इज फॉर डार्क फ्रिंजेस. ठीक है. देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर, इक्वेशन 5 जो थी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 दैट इज A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर. सो इंटेंसिटी विल बी I इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर. सो फेज डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई इज इक्वल टू 0, 3 पाई, 5 पाई, etc. So this is the condition for minima or dark fringes. Okay. एंड पाथ डिफरेंस के टर्म्स में देखें तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू फिर से अगेन लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस एंड लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n माइनस 1 इंटू पाई. फेज डिफरेंस कितना है, 2n माइनस 1 इंटू पाई. यस, पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है, 2n माइनस 1 इंटू पाई. ओके. सो दिस विल गिव 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2. ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल गिव दिस. सो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इन वैल्यूज के लिए जो है हमें क्या मिलेंगी, डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी. ओके. सो एक न्यूमेरिकल करते हैं. टू कोहेरेंट सोर्सेस whose intensity ratio is 81:1 produce interference fringes. Calculate the ratio of maximum intensity and minimum intensity. So I1 upon I2 is given 81/1. Okay. So A1 square, this is I1 is proportional to A1 square. I is proportional to amplitude square. So we can write this A1 square upon A2 square. A1 square upon A2 square इज इक्वल टू 81/1. ठीक. तो यहाँ से A1 अपॉन A2 कितना आ गया, 9/1. सो A1 कितना आ गया, A1 इक्वल्स टू 9A2. इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो A1 इक्वल्स टू 9A2. सो मैक्सिमम जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो हमें कहाँ पे मिलेगा, 9A2 प्लस A2 यानी 10A2. ठीक है. मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगा वो कितना होगा, 9A2 प्लस A2. और मिनिमम इंटेंसिटी होगा A1 माइनस A2 दैट इज 9A2 माइनस A2, तो 8A2. ओके. तो हमें निकालना है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम. सो I मैक्सिमम कितना होगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर
और आई मिनिमम होगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, ठीक है, 10A2 अपॉन 8A2। सो A1 प्लस A2 इज कितना, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर करेंगे हम तो ये है कितना है 10A2 का होल स्क्वायर, और ये नीचे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर है, दैट इज 8A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो A2 स्क्वायर से A2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है, तो 10 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, सो दैट विल गिव 100 अपॉन 64, यानी कि 25/16, ठीक है। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो मिला है हमें कितना मिला है 25/16। नाउ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी किसी वेव की जो इंटेंसिटी है कैन बी गिवन एज I इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो इंटेंसिटी एट मैक्सिमा यानी कि जहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, सो आई मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। सो A1 प्लस A2, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। सो इफ A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A हो, देन आई कितना हो जाएगा, यहाँ रख लेते हैं हम A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इस इक्वेशन में रखेंगे A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, दैट इज 4A स्क्वायर, ठीक है। सो एट मैक्सिमा पॉइंट्स द रिजल्टेंट इंटेंसिटी दिस मैक्सिमा पे जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है 4A स्क्वायर, ठीक है। इट इज मोर देन द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। अगर हम I1 प्लस I2 करते तो I1 प्लस I2 जब हम करेंगे, ओके, तो हमें मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और यहाँ अगर हम A1 इक्वल्स टू A2 लिख दें तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, कौन सा, मैक्सिमा पे जो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, ओके। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालें अगर हम, सो दैट इज A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर दैट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। सो A1 इक्वल्स टू A2 अगर हम कर दें, देन आई मिनिमम कितना हो जाएगा 0, ठीक, यहाँ से हो जाएगा 2A स्क्वायर और यहाँ से भी माइनस 2A स्क्वायर, दैट इज 0, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर, दैट इज 0। So thus the intensity at minima points is less than the intensity of any wave. So इंटेंसिटी जो मिनिमा पॉइंट्स पे मिले, मिनिमा पे जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी मिनिमा पॉइंट्स पे, वो जो है किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी है, यानी कि जैसे सपोज I1 हम ले रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या है, जो I1 है यानी कि फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू है A1 स्क्वायर, ठीक है। तो मिनिमा या फिर I2 ले रहे हैं वो भी है A2 स्क्वायर, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है। तो मिनिमा जो है वो, मिनिमा पे जो है इंटेंसिटी जो है वो हम कोई भी वेव ले लें उसकी इंटेंसिटी से क्या हम रहेगा, हमेशा कम रहेगा, ओके। क्योंकि प्रत्येक वेव की यहाँ पे इंटेंसिटी हम देखें तो ये है अलग अलग, लेकिन मिनिमा जब हम मिनिमा पॉइंट पे निकाल रहे हैं यानी कि टोटल इंटेंसिटी जब निकाल रहे हैं हम, तो वहाँ हम देख सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है, आई मिनिमम। सो this is very less in comparison to the individual wave. So the average intensity is given by, average intensity अगर हम निकालेंगे तो average intensity का फॉर्मूला होता है ये, I average is equal to this 0 to 2 pi I into d delta and upon 0 to 2 pi d delta. So this will give I की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 इक्वेशन 5 से है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा इंटू डी डेल्टा।
सो 0 to 2 pi डी डेल्टा डिवाइड बाई, ओके। सो ये हो जाएगा आपके पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर into 2 pi, okay, and upon this is 2 pi. So this will give the a1 square plus a2 square. So if a1 is equal to a2 is equal to a, then I average is equal to what, 2a स्क्वायर। यहाँ a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a रख दो, a2 स्क्वायर इक्वल टू a रख दो, तो आई एवरेज जो हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू आई, 2 इंटू आई, ठीक। Hence, in interference pattern, energy 2a1 a2 is simply transferred from minima to maxima points and the net intensity remains constant or conserved. So हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस जो पैटर्न है उसमें एनर्जी 2a1 a2 वो मिनिमा से मैक्सिमा पॉइंट में ट्रांसफ़र होती है और नेट इंटेंसिटी जो होती है हमेशा क्या होती है, कंजर्व्ड रहती है और कांस्टेंट रहती है, ओके। सो कल के लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ओके।